Good afternoon, sir. I am Raghav Agrawal from Delhi World Public School, Raigad, and this is my project, the Smart Cooler. This has many features like Android operation. This means that the Smart Cooler can be operated by any Android phone by downloading the Arduino Bluetooth Control Device app. It is freely available in Google Play Store. So I have paired my Bluetooth device with the mobile phone. Let me show you, sir, how it works. See, you can also set a timer, sir. I have set a timer for 1 minute. Now let's see what will happen after a minute. Till then, I am going to explain you further about my cooler. This has the Loofah Sponge Guard water holding cooler pad. I have used this as a cooler pad because when it dries up, its inner skeleton is suitable to be used as a cooler pad. And the reason for it is the normal coolers which are available in the market either use the wood wool pad or the honeycomb pad, which needs scrapped wood or paper to be made. So for that we have to cut trees and forests, so which we call as deforestation. Deforestation has to be done, and this is a very big challenge for today. So to overcome this problem, I have introduced the Loofah Sponge Guard cooler pad. Now the next feature of my cooler is pyramidal water tank. So the normal coolers which are available in the market have a flat cuboid water tank in which after usage is complete, the 4 to 5 liters of water is still left, and that is then wasted. So to overcome this problem of wastage of water, I have modified it and given it a pyramidal shape so that all the water gets centralized and I can use the maximum capacity of water. Here, as you can see, sir, because of my timer, the flashlight got switched off, and this is very essential, sir, because we have heard incidents that people putting their mobile phones on charging for overnight, and then in the morning we see that their phones batteries have been blasted. So this timer can help a lot. The next feature of my cooler is dual operative system. When electricity is there, this cooler will run on electricity, and during power cut, it will switch itself to battery powered mode. As you can see here, a 12-volt battery is fixed. So when electricity is there, this cooler will run on electricity and the battery will also get charged for the upcoming consequences of the power cut. Some other added features of my cooler are mobile charging unit, flashlight or switchboard. If you are not able to find your mobile phone, then you can operate the cooler manually. Then water level indicator is there indicating. Then the temperature and humidity sensor is also there. Mosquito killer is there. And easy front opening for repairing is also there. If any of your parts get damaged, then you can easily open the front part like this and repair the particular parts and shut the door. So easy detachable system is also there. While winters, the coolers are not in use, so you can detach the cooler and put it aside. Thank you, sir. सर मेरा नाम बीतम कुमार साहू है। मैं डोंडीलोहर ब्लॉक माध्यमिक शाला बड़गांव डिस्ट्रिक्ट बालों से आया हूँ। सर मेरा मॉडल का नाम है डिजिटल स्पीड ब्रेकर। सर ये वो ब्रेकर है जो ऐसा वाला स्पीड ब्रेकर रहता है सड़कों में गतिरोधक, वो वाला ब्रेकर नहीं है सर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे कि हम आजकल के समाचार में सुनते हैं कि यातायात में बहुत से दुर्घटनाएं हो रही, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, जिससे सड़कों को भी हानि होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़कों को ब्रेकर विहीन बनाना है। इसकी कार्यविधि यह है कि इसमें एक कार्ड होगा सर, जो ऐसा वाला ब्रेकर जो चिन्ह दिया होता है उसमें एक कार्ड लगा होगा, उसमें एक कोड डाला गया है। और इसमें ये कार्यविधि है कि जैसे कार आएगा उसमें RFID मॉड्यूल, ये सिस्टम लगा है तो RFID मॉड्यूल नीचे में लगा होगा सर। तो जैसे कार कितनी भी स्पीड में आएगी, इसका कोड है, इसके नियंत्रण में आएगा और इससे कोड को लोड करेगा।
और अंदर में आर्डिनो बोर्ड को बताएगा कि ब्रेकर आ गए, स्पीड को कम करो। तो आर्डिनो बोर्ड एक संचालन करता है, जैसे किसी कार्य को कराने के लिए संचालन करता की जरूरत है, इसी प्रकार इसमें आर्डिनो बोर्ड है। तो इसमें एक जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए मोटर ड्राइवर की ज़रूरत होती थी, इसमें ड्राइवर सेंस लगा हुआ है। तो आर्डिनो बोर्ड सेंस को बताएगा कि ब्रेकर आ गई, स्पीड को कम करो। तो सेंस मोटर ड्राइवर पावर सप्लाई लेकर स्पीड को पूरा नॉर्मल करेगा और उस पर जाने के बाद पुनः अपना स्पीड पकड़ लेगा। इसमें क्या होता है सर, जैसे कि वाला ब्रेकर आता है तो हम बार बार ब्रेक लगाते हैं, इसमें गाड़ी के कल पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं और ब्रेकर के उस पार जाने के बाद फिर से एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, गियर देते हैं। इसमें ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिना ब्रेक दबाए ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, बिना एक्सीलेटर दबाए फिर से पुनः हो जाएगा। ये ऐसे चलते हैं। नमस्कार, मैं रविकांत राजा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर सरगुजा से। मैं आपको आपातकालीन ऑक्सीजन प्रदायक यंत्र दिखाना चाहता हूं। हम प्राय टीवी अखबार में पढ़ते या सुनते रहते हैं कि कार में फंस जाने से दम घुटकर बच्चे तथा पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है, या बहुमंजिली इमारतों में आग लगने से कई व्यक्तियों की मृत्यु दम घुटने से हो जाती है। ऐसे में कारों में कोई ऐसी चीज लगा दी जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने तथा ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित स्तर से कम होने पर अपने आप खुल जाए और ऑक्सीजन सप्लाई कर दे, तो इस तरह की हो रही घटनाओं को रोका जा सकता है। कार के लिए बनाया गया उपकरण इन उसी सिद्धांत पर कार्य करेगा, जो किसी विशेष प्रकार की गैस की गंध को सूंघकर संकेतक की तरह कार्य करता है। वर्तमान संदर्भ में हम इसे घर में भी लगा सकते हैं या फ्लैटों में भी लगा सकते हैं। इसका उपयोग हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर सेंसर भी लगाए हैं और थर्मल सेंसर भी लगा है और CO2 सेंसर। जब CO2 यहाँ बढ़ता है सर, तो एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाते हैं, बजर बजता है। ऑक्सीजन टैंक लगाएंगे सर एक ठो। ऑक्सीजन टैंक के लिए सर यहाँ मतलब ढक्कन लगाना पड़ेगा सर, जो मतलब एयर फैन में रहता है, जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो अपने आप एक तो मार्क्स गिरता है, वैसा ही कुछ लगाएंगे सर यहाँ, लेकिन वो मिल नहीं पाया सर। तो जब हम इसको यहाँ हीट बढ़ा रहे हैं सर, 21.5 है, देखिए पास रखिएगा ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो 22.5 है अभी, मतलब मैं हाथ से उसी किया तो पास रखना है ना उसके, हाँ 26, 20 बच गया। मतलब पता चल गया कि मतलब यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है, आग लगा है, कुछ भी कारण हो। एग्जॉस्ट फैन ऑन हो गए, देख सकते हैं, पंखा चल रहा है, बजर बज रहा है, टेम्परेचर, लाइट सब ऑन हो गया। बस धन्यवाद। मेरा नाम चुन्नी सागर। ये एक व्हील चेयर है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, डोंगरगढ़ का मंदिर है, इसमें कोई विकलांग चल नहीं सकते, कुछ इस तरह। मैं मंतोष कुमरे, साइडुस टूरिस्ट एजुकेशनल एकेडमी रायपुर। ये जो है हमने मॉडल जो तैयार किया है, ये जो मॉडल है रोलिंग बैरियर, जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड जैसे साउथ कोरिया के पास में है। इंडिया में क्या 90% जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें श्योरली है कि जो पैसेंजर ड्राइवर होते उसकी डेथ हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बैरियर बनाए हैं। इसमें क्या है, रोलिंग बैरियर कितने भी अनकंट्रोल फोर व्हीलर इसमें टकराएगा तो ये रोल होते हैं, इम्पैक्ट एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको इजीली सेफली ब्रिज के नीचे ले आता है, जिससे 90% पैसेंजर और ड्राइवर्स इनकी डेथ होने से बच जाती है। ये हमारा ध्येय, क्योंकि हमारा थीम जो है वो है सेफ एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ क्लियर। मैं अवंत कुमार साहू, स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोड़गांव। मैं एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ ग्लूकोज डिस्पेंसर अलार्म। सबसे पहले इंसुलिन बेल यहाँ अस्पताल में देखा जाता है कि ग्लूकोज का बॉटल मरीज को चलाया जाता है तो ग्लूकोज बंद करके मरीज तक पहुँचता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि ग्लूकोज का बॉटल ख़त्म हो जाता है। ग्लूकोज का बॉटल ख़त्म होने के बाद मरीज के रक्त ब्लड की बॉटल की तरफ चढ़ने लगता है, तो बॉटल की तरफ चढ़ने लगता है तो ग्लूकोज का बॉटल ख़त्म होने के बाद यहाँ एक अलार्म बनाया है कि ग्लूकोज बॉटल ख़त्म होगा और यहाँ अलार्म बजेगी। तो डॉक्टर और मरीज़ को, डॉक्टर और नर्स को पता होगा कि ग्लूकोज का बॉटल ख़त्म हो गया तो वहाँ आकर बदल सकते हैं और इससे जान भी